नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू एक्सरसाइज 5.4। तो उसका फर्स्ट सम देखते हैं हम। इफ ए बी आर द वर्टाइसेस एंड जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन बाय वेक्टर मेथड फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। तो क्या करेंगे, सी तो दिया नहीं हमें, ए बी दिया है, तो सबसे पहले सी को डिफाइन कर देंगे। लेट सी बी x1 y1 एंड z1 and now put a bar b bar is equal, let a bar is equal to I plus 4j plus 2k, b bar is equal to minus 2 3 sorry b bar is equal to minus 2i plus 3j and minus 5k and a bar b bar हो गया and now g bar with the position vectors of point a b and g। तो 4/3 times I minus 2/3 times k कैप। ये ध्यान से लिखना है क्योंकि यहाँ 0 है तो हम डायरेक्टली j भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हमें ये ध्यान देना है। तो a bar b bar c bar and g are the position vectors of point a b c and g। And now the formula of centroid, by centroid formula, centroid formula से क्या मिलेगा हमें, g bar is equal to a bar plus b bar plus c bar upon 3। It can be written as 3g bar is equal to a bar plus b bar plus c bar। Now substitute the value of a b c and g। So here 3 times 4/3 I minus 2/3 k is equal to a bar की वैल्यू है I 42 मीन्स 142, तो I plus 4j plus 2k plus b bar is minus 2 plus 3 minus 5 minus 2 plus 3 minus 5 and again plus c bar means directly substitute the value of c bar x1 y1 z1, तो x1 I plus y1 j plus z1 k। यहाँ तक क्लियर है। अब आई जे के मीन्स आई की सारी वैल्यू एक साइड, जे की और के की सारी वैल्यू कॉमन ले लेते हैं हम, तो क्या मिल जाएगा इससे, आई कैप टाइम्स आई की सारी वैल्यू क्या है 1 minus 2 प्लस x1 प्लस जे कैप टाइम्स जे की सारी वैल्यू 4 प्लस 3 प्लस y1 प्लस के की, तो के कैप की वैल्यू ले लेंगे। के कैप का क्या है +2 minus 5 +2 minus 5 और एज इट इज 2 एंड प्लस z1। ये क्लियर हो गया। अब सॉल्व करते हैं हम, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 minus 2 क्या बचेगा 4i minus 2k इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, अब 1 minus 2 इज -1, ये बराबर है ना, +1 minus 2 इज -1, तो -1 x1 minus 1 I cap plus here 4 plus 3 is 7, so 7 plus y1 j cap plus -5 plus 2 is -3 plus z1 k cap। Now by equality of vectors से क्या करते थे हम, दोनों साइड को कंपेयर करते थे, और वी कैन राइट एज बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स I की वैल्यू x1 minus 1 is equal to 4, 7 plus y1 is equal to 0 and
-3 प्लस z1 इज इक्वल टू -2. So the value of x1 will be 5, 4 plus 1 5, and the value of y1 will be -7. The value of z1 will be -3 उधर गया, +3 -2 is +1. तो x1 y1 एंड z1 मिल गया हमें, मतलब c के पॉइंट्स भी मिल गए. तो c क्या मिल गया हमें? c is 5 -7 एंड यह 1, और c bar will be 5i -7j plus k cap. यहाँ तक क्लियर है. अब क्या बोला हमें? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी. तो वी विल इंट्रोड्यूस वन न्यू पॉइंट विच इज पॉइंट P. लेट P be the midpoint. P be the midpoint of side BC. Let P be the midpoint of side BC. So therefore, or by, first we will write by midpoint formula. By midpoint formula, P bar is equal to B bar plus C bar upon 2. ये तो हमने ऐसा सब पहले भी किया था, बट डायरेक्टली यहाँ से हमने स्टार्ट किया था मिड पॉइंट फॉर्मूला. बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला मिल गया, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? वेयर P बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. जैसे ये सब है, A बार B बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A B, वैसे P बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. तो P बार इज इक्वल टू B बार प्लस C बार अपॉन 2. तो B बार और C बार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको लिख देते हैं 1/2 टाइम्स. नाउ B बार इज -2 3 -5 -2 3 एंड -5 प्लस C बार इज 5 -7 1 5 -7 and here 1. Now solve the addition. -2 plus 5 is -3, sorry, +3 I plus 3 minus 7 is -4, and here -5 plus 1 is -4. यहाँ तक क्लियर है. तो P बार भी मिल गया हमें. नाउ द मिड पॉइंट ऑफ P इज, sorry, the midpoint of BC is 3/2, minus 4/2 will be 2, -2, and again minus 4/2 is -2. So now next sum, if A, B, C are the vertices and G is the centroid of triangle ABC, then by vector method find the value of x. So same problem as the previous we have done. So first we will write the A bar, B bar, C bar and G bar be the position vectors of points A, B, C are A bar is equal to 2i minus 2j plus 3k. B bar is equal to xi plus 4j minus k. And here C bar is equal to 3i plus xj minus 5k. And D bar is equal to, sorry, G bar is equal to 2i plus j minus k. तो G हमारा सेंट्रॉइड है. सो क्या लिखेंगे? सिंस G is the centroid, and therefore by centroid formula
सेम पहले जैसे ही करेंगे, पर डिफरेंस क्या रहेगा, उधर पे मिड पॉइंट बोला था तो वो वाला पार्ट नहीं रहेगा, उसके पहले ही खत्म हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, 3g bar इज इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस c बार। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ g, a, b एंड c। so 3 times g bar is 2 plus 1 minus 1 is equal to a bar is 2i minus 2j plus 3k plus b bar is xi plus 4j minus k, and now c bar will be 3x minus 5, 3x and minus 5. Now same as the previous one, सबको i वाले टर्म कॉमन, i वाले टर्म कॉमन के लिए क्या करेंगे, i कैप टाइम्स 2 प्लस x प्लस 3 प्लस j कैप टाइम्स माइनस 2 प्लस 4 प्लस x एंड प्लस k कैप टाइम्स क्या लेंगे, 3 माइनस 1 एंड माइनस 5, 3 माइनस 1 एंड माइनस 5। यहाँ तक क्लियर है। अभी क्या करना है हमें, 3 2 6, 6i प्लस 3j माइनस 3k इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज 5, तो 5 प्लस x टाइम्स i कैप प्लस माइनस 2 प्लस 4 इज प्लस 2 प्लस x टाइम्स j कैप, एंड हियर माइनस 3 sorry minus 1 minus y is minus 6, minus 6 plus 3 is minus 3, here k cap. Now by equality of vectors, by equality of vectors or by comparing both sides we get, by equality of vectors we get 5 plus x is equal to 6 and 2 plus x is equal to 3। और लास्ट वाले को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला है, और -3 सेम है, मीन्स हमारा आंसर करेक्ट जा रहा है यहाँ तक। सो 5 plus x is equal to 6, so x will be 6 minus 5 1, and here also x will be 3 minus 2 1, so the value of x we have got is करेक्ट। तो थर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। यूजिंग वेक्टर मेथड फाइंड द इनसेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन सो एंड सो पी क्यू आर। सबसे पहले पी क्यू आर को हम पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर देंगे। तो लेट पी बार क्यू बार आर बार बी द पोजीशन वेक्टर्स। Therefore, or directly p bar is equal to 4j cap, q bar is equal to 3k cap, and r bar is equal to 4j cap plus 3k cap। तो इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल बोला है तो उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो स्टार्ट करते पहले पी क्यू बार इज इक्वल टू क्यू बार माइनस पी बार विच इज इक्वल टू 3k कैप माइनस 4j। क्या हो जाएगा, माइनस 4j प्लस 3k एंड पी क्यू क्यू आर। ट्राइंगल है तो तीनों साइड रोटेट होना चाहिए, तो आर बार माइनस क्यू बार विच इज इक्वल टू 4j plus 3k minus q bar is 3k, so it will be remaining as 4j, 3k cancel।
नाउ पी क्यू आर बार एंड लास्ट वन इज पी आर बार, विच इज आर बार माइनस पी बार. आर बार माइनस पी बार इज 4j प्लस 3k minus p is again 4j, it will be 3. 4j get cancelled. तो यहाँ तक क्लियर है. अब हमें इंट्रोड्यूस करना है इन सेंटर. इन सेंटर क्या होता है? तो लेट्स से इफ h bar is the in center of triangle, if h bar is the in center of triangle, then h bar is equal to, उसका फॉर्मूला है x, उसका फॉर्मूला क्या है? h bar is equal to xp bar plus y q bar plus z r bar अपॉन x प्लस y प्लस z. यहाँ तक क्लियर है. अब हमें क्या करना है? x y z कहाँ से लाएंगे? तो ये है हमारा x y z. तो लेट्स से x इज इक्वल टू क्यू आर बार मॉड ऑफ क्यू आर बार विच इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर विच इज 4. y is equal to mod of p r bar which is equal to under root p r bar which is 3 का स्क्वायर 3 and z is equal to mod of p q bar which is equal to under root minus 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9. 16 plus 9 is 25 which is square root of 25 is 5. तो हमें x y z मिल गया. अब डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं h बार में. h बार इज अवर इन सेंटर, तो h बार इज इक्वल टू x इज 4 टाइम्स p बार. व्हाट इज अवर p बार? 4j प्लस नाउ y टाइम्स. व्हाट इज अवर y? 3. y टाइम्स q बार. q bar is 3k and z is 5 times r bar. r bar is 4j plus 3k upon 4 plus 3 plus 5 which is equal to 4 4s are 16j plus 3 3s are 9k plus 5 4s are 20j plus 15k upon 5 plus 3 8 plus 4 is 12. 1 by 12 times 16j plus 20j is 36j. 9 plus 15 is 24k. तो 12 अंदर जाएगा, कैंसिल कर देगा. क्या हो जाएगा? 12 3 जा 36 प्लस 12 2 जा 24. ये मिल गया हमें h बार. h बार इज 3j प्लस 2k. फाइंड द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ द h. h का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? h is what is our I cap? 0. what is our j cap? 3. what is k cap का कोएफिशिएंट? 2. so this is the final answer. सो फिफ्थ प्रॉब्लम जो है वो हमें प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है? यूजिंग वेक्टर मेथड प्रूव दैट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल कोइंसाइड्स विद सेंट्रॉइड ऑफ गिवन ट्राइंगल. क्या करेंगे हम? सबसे पहले डायग्राम देखेंगे इसका. तो डायग्राम कैसा बनेगा? ट्राइंगल बनाएंगे सबसे पहले. ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी और क्या बोला है?
सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल कोइंसाइड्स विद एक और ट्रायंगल इसके अंदर जो है उसके ये सबके मिड पॉइंट से बनेगा। इन सबके मिड पॉइंट से दिस विल बी पी क्यू आर। अब क्या बोलना चाह रहा है ये, जो ए बी सी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है और पी क्यू आर का जो सेंट्रॉइड है, दोनों ट्रायंगल का सेंट्रॉइड एक दूसरे पे लाई कर रहा है, मीन्स कोइंसाइड हो रहा है। तो ये हमें प्रूव करना है कि हो रहा है। तो क्या करेंगे, लेट से पी क्यू आर एंड ए बी सी सबको हम बोल देंगे पोजीशन वेक्टर है। लेट ए बार बी बार, क्या लेट ए बार बी बार सी बार पी बार क्यू बार एंड आर बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी एंड पी क्यू आर। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट या तो लेट ए बार बी बार सी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों मेथड करेक्ट है। तो अब स्टार्ट करेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। और ऐसा भी हम एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, लेट पी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, Q be the midpoint of side BC and R be the midpoint of side AC। तो हम लिखेंगे बाय मिडपॉइंट फॉर्मूला, बाय मिडपॉइंट फॉर्मूला क्या है, P बार इज इक्वल टू, एक ही लाइन में तीनों, P बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार अपॉन 2, Q बार इज इक्वल टू B बार प्लस C बार अपॉन 2 एंड R बार इज इक्वल टू A बार प्लस C बार अपॉन 2। ये हमने कर दिया। अब क्या करना है, सेंट्रॉइड बोला है, मीन्स दोनों का सेंट्रॉइड कोइंसाइड होना चाहिए। तो सेंट्रॉइड दोनों का डिफाइन कर देते हैं, लेट G एंड G1 be the centroid of triangle ABC and triangle PQR रिस्पेक्टिवली लिख दो। रिस्पेक्टिवली यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी क्या करेंगे, G एंड G बार भी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट G एंड G1, ये भी लिख लिया हमने। अब G बार क्या होता है, पहले बड़े ट्रायंगल का A बार प्लस C बार अपॉन 3, ये होता है सेंट्रॉइड। तो बड़े वाले ट्रायंगल का लिख लिया। अब दोनों कोइंसाइड होना चाहिए, मीन्स दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो देखते हैं, G1 बार विल बी P बार प्लस Q बार प्लस R बार अपॉन 3, ये छोटे का हो गया। G बार एंड G1 का स्मॉल G1 बार। PQR का सेंट्रॉइड ये हो गया एंड ABC का सेंट्रॉइड ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। G1 बार इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स PQR की हमारे पास वैल्यू है जो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमने निकाली है, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इधर पे। तो क्या बन जाएगा, A बार प्लस B बार अपॉन 2 प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 2 प्लस A बार प्लस C बार अपॉन 2। क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1/6 टाइम्स A बार प्लस B बार प्लस B बार प्लस C बार प्लस A बार प्लस अगेन C बार। तो क्या हो गया, सब 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो क्या कर देंगे, 1/6 टाइम्स 2A बार प्लस 2B बार प्लस 2C बार विच इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स A बार प्लस B बार प्लस C बार विच इज अवर G1 बार। अब अगर इसको ऐसे लिखे,
विच इज इक्वल टू जी बार। G1 बार हमारा जी बार जैसा ही दिख रहा है कि नहीं? G1 बार इज सेम एज जी बार। क्या कर देंगे? हेंस फाइनल आंसर विल बी हेंस ट्राइंगल, क्या लिखेंगे? सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR coincides with the centroid of triangle ABC. Hence proved. So next term is using vector method. If Q is the point of concurrence of the medians of triangle ABC, then prove that QA bar plus QB bar plus QC bar is equal to 0. तो इसमें क्या करना है हमें? सबसे पहले डिफाइन करेंगे जैसे हर सब में करते हैं, लेट ए बार बी बार सी बार एंड क्यू बार बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी एंड क्यू, with the position vectors of points A, B, C and Q. Now इससे क्या समझ में आ गया? हमें हिंट क्या देना चाह रहा है वो? Q is the point of concurrence of the medians. Since Q is the point of concurrence of median of triangle ABC, इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है मीन्स Q इज द सेंट्रॉइड है। Q क्या है? वो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी। तो सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम? Q बार G रहता है तो G एंड Q है तो Q बार। A बार है B बार प्लस C बार अपॉन 3, it will become 3Q bar is equal to A bar plus B bar plus C bar. Now हमें प्रूव क्या करना है? QA QB QC is equal to 0. So let LHS is equal to QA bar plus QB bar plus QC bar. QA बार को कैसे लिख सकते हैं हम? A बार माइनस Q बार प्लस B बार माइनस Q बार प्लस C बार माइनस अगेन Q बार। तो A B C वाले तीनों टर्म हमारे पॉजिटिव है एंड Q बार वाले तीन Q बार भी है, तीनों नेगेटिव है। तो A B C वाले एक साइड ले लेते हैं हम, A बार B बार एंड C बार एक साइड आ गया, Q माइनस Q एंड माइनस Q, तीनों माइनस Q ऐड हो गए 3Q बार बन गए। तो क्या हो गया? 3Q बार हमारा क्या था? विच इज सेम एज A प्लस B प्लस C। तो A बार प्लस B बार प्लस C बार माइनस 3Q इज अगेन A बार प्लस B बार प्लस C बार, दोनों भी सेम सेम टर्म, सब कैंसिल होके क्या बचेगा? 0, विच इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। तो एक और एग्जाम्पल करते हैं, वो भी हम प्रूव करना है हमें। यूजिंग वेक्टर मेथड शो दैट the segments joining the midpoints of consecutive sides of a quadrilateral form a parallelogram। एक quadrilateral है जिसके मिड पॉइंट्स रहेंगे, चार साइड का क्वाड्रिलेटरल है, सब पे मिड पॉइंट्स रहेंगे, और वो मिड पॉइंट्स को हम अगर ज्वाइन करते हैं सारे मिड पॉइंट्स तो वो पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। वो क्या बनना चाहिए? पैरेललोग्राम, अगर वो सारे मिड पॉइंट्स ज्वाइन होते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये है क्वाड्रिलेटरल, ये सब इसके मिड पॉइंट्स। तो हम एक एक मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे। ये दोनों पैरेलल दिख रहा है एंड ये दोनों भी पैरेलल होगा, तो क्या हो जाएगा? मतलब प्रूफ हमारा करेक्ट है। A B C D and this is P Q
आर एंड एस। डायग्राम से तो दिख रहा है बट हमें प्रूव कर रहा है, तो ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। नाउ लेट ABC be the ABCD be the quadrilateral and PQRS be the points, or let's say PQRS be the midpoints of side AB, BC, CD and AD। अभी के लिए, अभी हम प्रूव नहीं किए, तो अभी इसको फिलहाल हम PQRS को मिड पॉइंट्स ही कंसिडर करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हमारी फेवरेट लाइन है हर क्वेश्चन में, लेट A बार, B बार, C बार, D बार be the position vectors and P bar, Q bar, R bar and S are also be the position vectors of points P, Q, R, S। वो लिख लेंगे हम। वो लिखने के बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले therefore, वो सब लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ बट आपको लिखना है एग्जाम में। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, लेट्स से पहला P बार का फॉर्मूला A बार प्लस B बार अपॉन 2, Q बार इज इक्वल टू B बार प्लस C बार अपॉन 2 एंड R बार इज इक्वल टू C बार प्लस D बार अपॉन 2, S बार इज इक्वल टू A बार प्लस D बार अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले PQ एंड RS पैरेलल दिखाना हमें, या SR। तो क्या करेंगे हम, लेट से PQ बार इज इक्वल टू Q बार माइनस P बार विच इज इक्वल टू, Q बार माइनस P बार क्या है, B बार प्लस C बार अपॉन 2 माइनस A बार प्लस B बार अपॉन 2 विच इज 1/2 कॉमन, B बार प्लस C बार माइनस A बार प्लस B बार, सॉरी A बार माइनस B बार, B बार get cancelled, it will be 1/2 टाइम्स C बार माइनस A बार। हमें PQ बार मिला। अब SR बार इज इक्वल टू R बार माइनस S बार विच इज, व्हाट इज अवर R बार, C बार प्लस D बार अपॉन 2 माइनस S बार इज A बार प्लस D बार अपॉन 2। Now 1/2 common, C bar plus D bar minus A bar minus D bar, minus D bar plus D bar cancelled each other. Now 1/2 times C bar minus A bar, which is same as SR bar is same as PQ bar. Now we can write it as, therefore PQ bar is equal to SR bar। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल है। इक्वल है मीन्स एक दूसरे को पैरेलल भी होंगे, दिख रहा है क्योंकि पैरेलल है, सेम लेंथ है। दैट मीन्स PQ बार इज पैरेलल टू SR बार। So similarly PQ bar is parallel to SR bar, PQ bar is parallel to SR bar. Now we can say that PS bar is equal to QR bar। That means PS bar is also parallel to QR bar। ये दोनों parallel है, therefore we can write quadrilateral PQRS is a parallelogram। So ninth sum start करते हैं। If the diagonals of a parallelogram are of equal length, then prove that the parallelogram is a rectangle। मीन्स हमें क्या बोला है, पैरेललोग्राम दिया है, उसे हमें प्रूव करना है वो रेक्टेंगल है। कैसे, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बना लिए, बट ये फिलहाल के लिए क्या है, पैरेललोग्राम। इसे हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। A B C D, डायगोनल हो गया ये। नाउ दिस इज P बार, AB is P bar and DC is also P bar। Here it is Q bar and
दिस इज ऑल्सो क्यू बार। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करना है हमें सबसे पहले, सिंस या तो डायरेक्टली लिखेंगे ए बी बार, सॉरी इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो सबसे पहले देयरफॉर ए सी बार इज इक्वल टू बी डी बार मॉड ए बी बार इज इक्वल टू बी डी बार। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब क्या करना है, सिंस ए बी बार सॉरी ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, since A, B, C, D is a parallelogram, then क्या हो जाएगा, ए बी बार इज इक्वल टू डी सी बार, सेम होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, पैरेललोग्राम है तो ए बी बार इज सिमिलर टू डी सी बार विच इज पी बार, एंड सी बी और बी सी बार इज इक्वल टू ए डी बार विच इज क्यू बार। नाउ हमारा डायगोनल जो लेंथ है ए सी बार क्या होगा, ए बी बार प्लस बी सी बार, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और ए बी सॉरी ए सी बार डायगोनल लेना, तो ए सी बार इज इक्वल टू ए बी बार प्लस बी सी बार विच इज इक्वल टू ए बी बार का क्या लेंथ है पी बार प्लस बी सी बार क्या है क्यू, तो पी प्लस क्यू आ गया। नाउ व्हाट इज बी डी बार, बी डी बार तो हम ऐसे ले सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी बार प्लस सी डी बार, बी सी बार इज क्यू बार माइनस सी डी बार इज, यू कैन राइट इज इट एज डी बार माइनस सी बार, तो माइनस हो जाएगा, तो क्यू बार माइनस पी बार। यहाँ तक क्लियर है, क्यू बार माइनस पी बार। नाउ अगेन मॉड ए सी बार इज इक्वल टू मॉड बी डी बार गिव्स, क्या देगा ये हमें, सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा इससे, पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू पी बार, ये मॉड रखने, पी बार माइनस क्यू बार, और क्यू बार माइनस पी बार, क्या रखेंगे यहाँ पे, क्यू बार माइनस पी बार। नाउ मॉड है दोनों तरफ तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर करेंगे तो मॉड हट जाता है, माइनस पी बार स्क्वायर, तो क्या पी बार प्लस क्यू बार का स्क्वायर मीन्स ऐसे लिख सकते हैं दो बार पी बार प्लस क्यू बार इंटू पी बार प्लस क्यू बार, तो ये सेम एज पी बार प्लस क्यू बार का स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्यू बार माइनस पी बार पी बार। नाउ मल्टीप्लाई द टर्म्स, पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो पी बार इंटू पी बार मीन्स पी बार डॉट पी बार प्लस पी बार डॉट क्यू बार एंड प्लस क्यू बार डॉट पी बार प्लस क्यू बार डॉट क्यू बार, ये तो ज़ीरो होता है बट आगे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ क्यू बार डॉट क्यू बार माइनस क्यू बार डॉट पी बार माइनस पी बार डॉट क्यू बार माइनस माइनस प्लस पी बार डॉट पी बार। यहाँ पे एक चीज़ लिख देंगे, सिंस पी बार डॉट क्यू बार इज सेम एज और इज इक्वल टू क्यू बार डॉट पी बार, कैसे भी फर्क नहीं पड़ता, पी क्यू लिखो या क्यू बी लिखो दोनों भी सेम है, बट दोनों अगर सेम है पी बार डॉट पी बार विच इज ज़ीरो, तो एकदम ये ज़ीरो प्लस पी क्यू बार प्लस क्यू बी बार, ये हो गया दो बार मीन्स टू पी क्यू बार लिखेंगे हम इसको, टू पी क्यू बार, और ये तो ज़ीरो ही है इज इक्वल टू, यार डायरेक्टली लिखते हैं टू पी क्यू बार, क्यू ज़ीरो हो गया एंड यह पी ज़ीरो, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस की रहेगी, माइनस टू पी क्यू बार।
नाउ 2 p क्यू बार एंड -2 p क्यू बार, इसको इधर लेके आएंगे तो 2 + 2 4 p बार.q बार विच इज 0. नाउ p बार.q बार इज 0. अब डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है p.q मीन्स p इज परपेंडिकुलर टू q. ये हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी. देयरफॉर p इज perpendicular to q बार. दैट मीन्स p किसका वैल्यू है, मीन्स p किसकी लेंथ है, ab की, एंड q किसकी लेंथ है, bc की और ad की. दैट मीन्स ab बार इज परपेंडिकुलर टू cb बार. ab बार इज परपेंडिकुलर टू, वो साइड का ले लेते हैं, एडी बार. देयरफॉर जब परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर नहीं रहता, कोई और डिग्री में रहता तो उसको हम बोलते हैं सिर्फ पैरेललोग्राम है, वो रेक्टेंगल नहीं है. अगर परपेंडिकुलर हो रहा है मीन्स ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है हमें, हमने तो डायग्राम बनाया ही करेक्ट, बट हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव भी कर लिया. ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी और ए डी. नाउ वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rectangle. So next sum is show that the vector area of quadrilateral ABCD is equal to half times AC into BD, where AC and BD are its diagonals. सबसे पहले सम को सॉल्व करने के लिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्या हो जाएगा, ABCD. क्या बोला है, AC इज डायगोनल, AC एक डायगोनल हो गया एंड BD दूसरा डायगोनल हो गया. यहाँ तक क्लियर है. नाउ क्या प्रूफ करना है, हाफ AC इंटू BD. उससे पहले हम देखेंगे वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल. वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ AB बार इंटू AC बार. AB बार इंटू AC बार, ये वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होता है. तो ये था एक वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. तो इस तरह से वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा, तो वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC. मीन्स दोनों ट्राइंगल को अगर हम ज्वाइन कर दे तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो दोनों को ज्वाइन करके जो वेक्टर एरिया मिलेगा वो हमारे क्वाड्रिलेटरल का वेक्टर एरिया हो जाएगा. तो क्या लिखेंगे, वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC का और ABC का ट्राइंगल वेक्टर एरिया अगर ऐड करेंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD का वेक्टर एरिया मिल जाएगा. तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू ट्राइंगल ABC का क्या है, हाफ AB बार इंटू AC बार प्लस हाफ AD बार इंटू AC बार और AC बार इंटू AD बार लिखा हमने. ये क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स माइनस AC बार इंटू AB बार प्लस हाफ टाइम्स AC बार इंटू AD बार. ये कैसे किया हमने, यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस B बार क्रॉस A बार और ऐसे लिख A बार क्रॉस B बार इज इक्वल टू माइनस B बार क्रॉस A बार. ज़्यादा क्लियर है. अब हाफ कॉमन,
क्या लिखेंगे, पहले पॉजिटिव वाला टर्म ए सी बार क्रॉस ए डी बार माइनस ए सी बार क्रॉस ए बी बार। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब करते हैं ए सी दोनों में आ रहा है तो ए सी टर्म कॉमन ले लेंगे, हाफ ए सी बार क्रॉस ए सी बार क्रॉस ए डी बार माइनस ए बी बार। क्या हो जाएगा, ए डी बार माइनस ए बी बार इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ए सी बार क्रॉस ए डी बार, माइनस का प्लस करेंगे तो ये उल्टा लिखना पड़ेगा, ए डी बार प्लस बी ए बार कर दिया हमने। ए सी बार चाहिए हमें तो ए सी बार को हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, हाफ टाइम्स ए सी बार एज इट इज क्रॉस ए डी बार प्लस बी ए बार। क्या होता है, ए डी बार प्लस बी ए बार मीन्स बी ए प्लस ए डी, तो ये डायगोनल मिलेगा जैसा हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था, बी ए प्लस ए डी इज बी डी, तो ए सी बार प्लस ए सी बार क्रॉस बी डी बार। यही तो हमें प्रूव करना है, हाफ टाइम्स ए सी क्रॉस बी डी। तो देयरफॉर वेक्टर एरिया ऑफ quadrilateral ABCD is equal to half times AC bar cross BD bar, hence proved. So friends, we have completed our vectors chapter का exercises, सारे exercises हमने कंप्लीट किया जितना हो सका हमसे। हमने सारे डिफरेंट वैरायटी के सम्स और बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए सम्स हमने सब किया। अब आपका काम है उसे प्रैक्टिस करना, जो उसके सिमिलर सम्स थे वो हमने आपको एज अ होमवर्क रिफर करने के लिए कहा है, तो आप उसे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो हम आपको उसका PDF या वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।